A very good morning to all my dear students. Welcome to the science class. Hope you all are enjoying your e-learning. So students, in today's class we are going to study about force and pressure. So in this module we will see the following topics, and these are force and its causes, effects of force, types of forces, pressure, relationship between pressure and area, pressure exerted by liquids, atmospheric pressure and its effects. So students, now we will see what actually force is. So a force is a push or pull or both. A force cannot be seen, but we can feel and observe the effect of force. See students, as you know that you must have seen written on the written on the door of the banks and at the places where on the doors you must have seen push and pull written over there, right? So students, that is when you just push it by your hand. So जब आप उसके ऊपर force exert करते हैं तब क्या होता है, वो open हो जाता है. So this, the push and the pull refers to force. So students, a force to move an object away from your body, or pull is a pull when we apply a force to move an object towards our body. So they are what? They are force. Okay students, combination of push and pull. So students, here are some few examples which you can just refer. So push and pull. Students, you must have ever played the game that tug of war ना, उसमें कैसे एक rope होती है and opposite side पे जो people उसमें participate करते हैं, they used to just pull the rope towards each other. अपने opposite side में दोनों force लगाते हैं so that जिसका की force greater होता है उसके तरफ motion हो जाता है other people का. So students, here we will see forces are due to interaction. So students, there are forces. The forces may be effective only when there is an interaction between the two bodies. Students, an interaction of an object and to the another object results in a force between the two objects. That is, students, you can just see it through this example. When a man stands behind a car and the car does not move, if he pushes the car, he applies force and the car begins to move in the direction of the applied motion. So students, until and unless the man is pushing the car away, जब तक वो उस पे force apply नहीं कर रहा है, so the car will remain stationary, it will not move. So students, proceeding further, so we will see if two objects acts on a body in the same direction. अगर हम suppose students, I'll give you one example. अगर एक बड़ा सा cardboard, एक बड़ा सा box and it is quite heavy and you want to drag it alone, so it will be very difficult for you to do it, right? So when you will just ask your friend or your sibling to help you out in that, so क्या होगा, जो आप force apply कर रहे होगे and your friend or your sibling is applying the force, that will be added and the net force will be added, and the direction of the motion, the direction of the force will be in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में कि फोर्स लगा रहे हैं, राइट? सो द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन कंबाइंड बाय एडिंग. ओके स्टूडेंट्स, नाउ when the unbalanced force is acting in opposite direction, see students, if you consider कि आपका जो friend है या sibling है वो opposite directions में से उस पे force apply करने लगे, then what will happen? So the net force is the difference between the two forces and is exerted in the direction of the larger force. So students, आपने suppose ये अपने live example में भी देखा होगा, whenever you are just pushing something, like अगर आप अलमीरा को shift कर रहे हो, you are just changing the setting of your room, और अगर आप एक अलमीरा को push करते हो and at the same time कि सामने से आके उसको पुश करेगा, so what you will observe ना, कि वो जो उसका मोशन होगा वो नहीं होगा. तब नहीं होगा अगर दोनों का जो अप्लाइड फोर्स है, अगर यहाँ से F1 एंड F2 अगर बैलेंस्ड फोर्स है, दैट मीन्स बिल्कुल इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो मोशन नहीं होगा ऑब्जेक्ट का. बट अगर यहाँ पे F1 या F2 में से जिसका भी फोर्स ग्रेटर
होगा, सो उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा. सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी दैट F2 is greater than F1, so the resulting force could be, we can just obtain it by subtracting it from F1, okay, as F2 is the greater one. So the effect on the object depends on the net force acting on it. Now children, if we pull the block both sides with the same force, the block remains stationary. Okay students, अगर हम उसको दोनों साइड से, ऑपोजिट साइड से सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, सो कोई भी मोशन नहीं होगा. द फोर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, द नेट फोर्स इज जीरो. सच a pair of forces are called balanced force. जब आपका दोनों साइड से फोर्स इक्वल लगता है एंड ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा, सो दिस इज द बैलेंस्ड फोर्स एंड दे डू नॉट cause any change in the state of rest. ये अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी ही रहेगा. सो एज यू कैन सी दैट एफ, ये जो आपका नेट फोर्स था, सपोज यहाँ पे आपका फोर्स जो है सिमिलर है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम अप्लाई हो रहा है. लाइक यहाँ पे अगर 4 न्यूटन है एंड यहाँ पे 4 न्यूटन है, सो आफ्टर सब्सट्रैक्शन द रिजल्टिंग फोर्स विल बी 0. नाउ स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस. अब आप देखोगे कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, सो उसके अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं. सो दीज आर द फ्यू चेंजेस विच वी मे ऑब्जर्व एंड दीज आर फोर्सेस कैन मेक द ऑब्जेक्ट मूव. ओके, सो वी विल सी द एग्जाम्पल्स ऑल्सो ऑफ दीज. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, जब भी आपकी फुटबॉल जो होती है, व्हेन यू किक इट, व्हेन यू अप्लाई फोर्स विद योर लेग, सो क्या होता है, तब वो रेस्ट से मोशन में आ जाती है. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड व्हेन द बॉल इज इन मोशन, एंड जो आपकी ऑपोजिट पार्टी जो गोल करने से रोक रही होती है, व्हेन ही जस्ट अप्लाई द फोर्स ऑन इट, ऑन अ गोल कीपर जब बॉल को पकड़ता है, सो व्हाट एक्चुअली ही इज डूइंग, वो एक मोशन में, जो बॉल मोशन में है उसको स्टेशनरी कर देता है, उसके मोशन को रोक देता है. फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर आप अपने लेग से फोर्स एक मूविंग बॉल पे करोगे, ओके, मूविंग बॉल पे अप्लाई करोगे अपने लेग से फोर्स, तो क्या होगा, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सी स्टूडेंट्स, आपने हॉकी खेलते हुए देखा होगा एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अ बैट्समैन हिटिंग अ बॉल विद हिज बैट. सो उसमें क्या होता है, फोर्स अप्लाई करके द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट कुड बी चेंज्ड, राइट. Force can change the shape of an object. See students, when you stretch a rubber band and when you just squeeze a sponge, and जब आप spring को press करते हो, तो उसका क्या होता है, shape change हो जाता है. When you apply force to it, depending कि वो कितना elastic है. Clear? So here are some examples of that. Like as you can see that the car wasn't in motion until and unless the man applied force to it, and with the on the pedal, the child is just applying force on the pedals, and hence the wheels are moving. Similarly, ये एक बॉल आपके मोशन में थी, ये स्टेशनरी हो जाएगी. एंड व्हेन योर ममा इज मेकिंग डो, सो वो कैसे, जब उस पर फोर्स अप्लाई करके डो की शेप को चेंज कर देती हैं, राइट. एंड सिमिलरली एज आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ अ बैट्समैन. नाउ स्टूडेंट्स, हियर एज आई हैव टोल्ड यू दैट हम शेप में भी चेंज ऑब्जर्व करते हैं. सो यू कैन जस्ट सी हियर बाय these pictures, this pictorial representation is the best by which you can conclude that yes, by force the shape of the objects may change. An object that will return to its original shape and size after being squeezed, pressed, twisted, stretched is elastic. So students, here as you can see, inelastic कौन से होते हैं जिन पे कि आप फोर्स अप्लाई करते हो. सो ये देखिए, ये ग्लास क्या है, ब्रिटल है, ये इलास्टिक नहीं है. सो जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, सो ये स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाएगा. सिमिलरली यू कैन जस्ट सी हियर, दीज आर द फ्यू ऑब्जेक्ट्स विच आर एक्चुअली नॉट वेरी इलास्टिक इन नेचर. नाउ चिल्ड्रन, वी विल सी दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ forces. The forces are being categorized majorly into two categories, and they are contact forces and non-contact forces. So namely, the three kinds of contact forces are muscular force, force of friction, mechanical force, and non-contact forces are magnetic force, electrostatic force, gravitational force. So students, what are actually contact force and non-contact forces are? Students, कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तब फोर्स इफेक्टिव हो. दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स.
Okay, and what is non-contact force? The force which could be experienced without being in contact with the object. Clear? So students, these different forces we are going to see in detail, and first we will see the contact forces. So in that we are going to first look to the muscular force. Students, whenever you just pull, जब आप अपने बैक को पुल करते हो और अपने हैंड पे रखते हो, so this is a मस्क्यूलर फोर्स. ओके, एंड ये क्या कर रहे हो आप? मस्क्यूलर पुल कर रहे हो. मसल्स आपके बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स होते हैं ना चिल्ड्रन. सो जब आप उनको बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ट्राइसेप्स रिलैक्स होते हैं, सो ये एक फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है बाय दैट. सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, मस्क्यूलर फोर्स इज द फोर्स exerted by the muscles of our body. We use muscular force for our various activities, like animals like bullocks, horses, camels, donkeys, elephants also use muscular force to perform various tasks. Okay, so as you can see here in the pictures, students, force of friction. What is force of friction? See, force of friction is the force which opposes the motion of ऑब्जेक्ट ओवर सरफेस. स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है कि जब आपकी एक मूविंग बॉल होती है, एक टाइम के बाद आके वो स्टेशनरी हो जाती है, रुक जाती है. व्हाई इज इट हैपनिंग सो? बिकॉज क्योंकि एक अपोजिंग फोर्स भी उसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है, एंड दैट इज force of friction. So here are some examples. As the rolling ball on the ground gradually slows down and comes to the rest. Okay, and if we stop paddling a bicycle, अगर हम पैडल उसको करना बंद कर देंगे, so gradually it will slow down and it will stop. Now students, what is mechanical force? So the force produced by machines, it works only with the help of energy supplied by external sources like petrol, डीजल, एंड ये इन फ्यूल्स के बर्निंग से जो एनर्जी इनको मिलती है उससे ये ऑपरेट होते हैं. सो द इंजन ऑफ द व्हीकल रन्स विद द हेल्प ऑफ फ्यूल and makes the car move. Students, non-contact forces क्या होते हैं? Have you ever seen a magnet? I am pretty sure students, आप सब ने मैग्नेट से खेला ज़रूर होगा. So children, आपने कभी फ्रिज को देखा होगा, जब आप फ्रिज को थोड़े से दूर पे ही छोड़ देते हो, what you experience की that the door closes on its own, right? ऐसा होता है ना. So students, we will see that जो आपकी मैग्नेट होती है उसमें टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ. हियर साउथ पोल इज जस्ट साउथ पोल को हमने रिप्रेजेंट किया है वाइट पोर्शन से, एंड नॉर्थ पोल को हमने रेड पोर्शन से रिप्रेजेंट किया है. सो स्टूडेंट्स, व्हेन द ऑपोजिट पोल्स कम्स इन कॉन्टैक्ट, जब कॉन्टैक्ट में नहीं भी आते, थोड़ी डिस्टेंस पे भी होते हैं, सो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं. सो दिस इज व्हाट. And when the similar poles comes in जब similar poles आपके when the similar poles will face towards each other, in that case they will experience the repulsion. उसमें क्या होगा? repulsion होगा, एक दूसरे से दूर होंगे. So magnetic force is the force exerted by magnets, force of attraction and repulsion between the two magnets. Now force exerted by a magnet on a piece of iron. So जब भी कभी आप क्या करते हैं, as you know, जो मैग्नेट होता है वो आयरन को अपने पास अट्रैक्ट करता है, राइट? सो अगर आप किसी आयरन नेल रख दीजिए और उसके थोड़ा दूर पे मैग्नेट रखिए, सो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल स्टार्ट working on the iron nail. Now students, electrostatic force, आपने students कभी experience ज़रूर किया होगा. Whenever you are combing your dry hairs, so क्या होता है, उस comb के अंदर एक स्पार्क सा हो जाता है ना. सो दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. स्टैटिक मीन्स होता है बेटा जो स्टेशनरी होता है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर और अनचार्ज्ड बॉडी. अ प्लास्टिक स्ट्रॉ चार्ज बाय रबिंग विद अ पेपर अट्रैक्ट. सो स्टूडेंट्स, अगर आप उस कोम को लेके किसी पेपर के पास जाओगे, सो वो उस पर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी. अ प्लास्टिक स्ट्रॉ चार्ज बाय रबिंग विद पेपर रिपल्स अ सस्पेंडेड प्लास्टिक चार्ज बाय रबिंग विद पेपर. ओके, सो ये दिस इज द एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू इट एट योर होम. आप अपने ड्राई हेयर्स पे कॉम से अपने हेयर कॉम कीजिएगा, और उसके बाद आप उसको टाइनी पीसेस ऑफ पेपर्स के पास लाएंगे. सो यू विल एक्सपीरियंस दैट वो जो कॉम्ब होगी वो उन पीसेस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? सी स्टूडेंट्स, आवर अर्थ, हमें अर्थ अपनी तरफ पुल करती है, एंड दिस इज ग्रेविटी. सो स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स exerted by the earth
all objects, it pulls all objects towards the earth. That is why students हमने ये आपको बताया था कि जब भी एप्पल फॉल करता है वो हमेशा नीचे ही फॉल करता है. व्हेनेवर वी फॉल, वी फॉल्स डाउन ओनली. ओके, ऐसा नहीं होता कि हम क्या करने लगते हैं, लाइक वी यूज टू जस्ट फ्लाई, ऐसा नहीं होता ना. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट मून की ग्रेविटी जो है वो हमारी अर्थ से कम है, तभी हमारा जो वेट होता है वो मून पे कम होता है. और हमारे अर्थ पे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, हमारा जो वेट है हमारी बॉडी का इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, राइट. सो स्टूडेंट्स, अ कॉइन और अ पेन फॉल्स डाउन व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड. वो नीचे ही गिरता है, कभी भी कुछ धोखे से गिर जाता है. सो इट्स फॉल्स डाउन ओनली, इट डजंट फ्लाई, राइट. सो लीव्स एंड फ्रूट्स फॉल, everything falls off na. जब भी like you can just see by the pictures, and they get detached from the plant. Water river flows down. Okay, now students will see, now we are at the point that we have already know about water's pressure. Now students, we will see that pressure depends on force and area. Okay, so अभी हम force पढ़ चुके हैं. Now children, we will see that what is actually pressure. Pressure क्या होता है, right? So pressure describes how a force is spread over an area. So जो हम force apply कर रहे हैं वो area पे कैसे spread हो रहा है, that is actually force. So it is a measure of how much force is acting on a certain area, right? So students, in one definition we can say that हम क्या बोल सकते हैं, pressure को is defined as the force acting on a unit area of a surface. Unit area पे कितना surface apply हो रहा है, right? Now students, pressure is the force acting per unit area. So the like SI unit of pressure is Pascal. इसकी SI unit क्या होती है, Pascal होती है. If area is smaller, the pressure is more on the surface for the सेम फोर्स. स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सा कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगी, दैट जब भी कभी आप पॉइंटेड हील्स पहनते हैं, गर्ल्स को ये बात पता होगा, यू मस्ट हैव सीन योर ममा वेयरिंग इट, राइट. सो आप देखते हो कि जब वो पॉइंटेड हील पहनते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी उनका लैग पेन करने लगता है, बिकॉज जो फोर्स होता है ना, वो प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है. एंड व्हेन द प्लेटफॉर्म हील, जब आपकी मम्मा प्लेटफॉर्म हील पहनते हैं, सो आपकी उनके पैर में जल्दी दर्द नहीं हो सकता. दिस इज बिकॉज द प्रेशर इज लेस व्हेन द एरिया. सो अब हम कैसे देखेंगे, इसका एक रिलेशन है बेटा. सी, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. सी स्टूडेंट्स, force you already know, and area. Now students, as you can see that pressure is inversely proportional to area. Inversely means ये आपके denominator में है. That means अगर area बड़ा होगा so pressure कम होगा. अगर आपका area small होगा so the value of the pressure will be greater. So this is inversely proportional and this is directly proportional. So this is the relation, and हम कोई भी numerical इससे कर सकते हैं. Like if in a question two values of these are given, so we can just find the third one. हम pressure निकाल सकते हैं अगर हमारा कोई force दिया हुआ है. Like suppose अगर हम बोले calculate the pressure produced by a force of 5 Newton. That means 5 Newton force है and applied on an area of 1 square meter. Okay, so हम simply क्या करेंगे, 5 को 10 meter square से divide कर देंगे, right? And we will get the answer. Okay, ये numericals already I have explained you. Now students, increasing the pressure by reducing the area. So as you have seen the relation of force, area and pressure. So as I have told you, the pressure and the area is inversely proportional to each other. So हम क्या कर सकते हैं, area को कम करके pressure को बढ़ा सकते हैं. So these are the few examples, like increasing the pressure by reducing the area. So तभी आप देखते होगे, आप जिस knife से cut करते हो उसका जो edge होता है, it is like very thin. That is why वो जो pressure है वो ज़्यादा exert हो सके. Now you can just see the high pressure on the surface of the ice so that the ice melts and allowing the ice skater to slide smoothly. Now students,
here as you can see, आपने देखा होगा like so many shows में in many of the shows you must have seen कि लोग nails के ऊपर क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं. But if you will ask them to stand on a single nail, अगर आप उसको single nail पे खड़े होने के बोलोगे so that person will refuse you because वहाँ पे pressure जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक large area बन गया है इसका, so pressure कम हो गया है. So when a force is applied to the head of a nail, so the pressure will drive its sharp end into the piece of the wood easily. So आप कभी देखते होगे, जो आप अगर nail देखोगे, right? So अगर आप nail को ध्यान से देखोगे, so you will observe that कि आपकी जो nail होती है उसकी tip जो होती है वो बहुत pointed होती है. This tip is pointed because उसका जो area है वो लेस हो जाता है, राइट. सो आपका प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. वो जल्दी से जब आप उसके ऊपर हैमर करोगे सो वो आपकी इजीली हो जाएगी. नाउ इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया. सो आपने देखा होगा जो आपके फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं उनका द प्रेशर अंडर द स्टड्स इज हाई इनफ फॉर देम टू सिंक इनटू द ग्राउंड with high gives extra grip, जो कि उनको ज़्यादा grip देती है, ज़्यादा pressure से वो intact रह सकते हैं ground पे. Increasing the pressure by reducing the area. So students here similarly एक example दिया हुआ है, जो एक really needs very high air pressure inside the tires because the narrow tires have a very small contact area with the icy road. Okay students, here is also one example of reducing the pressure by increasing the area by, as you can see, the pressure on the snow is like so that they may not sink. Okay, now reducing the pressure by increasing the area. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एक ट्रैक्टर है जो मूव कर रहा है on the ground and इसके जो टायर्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, वाइड होते हैं, to reduce the pressure on the ground so that they will not sink into the ground, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी होती है और उस पर वो क्या कर सकते हैं, अगर ये बहुत थिन होंगे तो वो उसमें क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, राइट. सो नाउ स्टूडेंट्स, जब भी आप देखते होगे यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड कि आपका जो बैग होता है उसका स्ट्रैप जो होता है इट इज़ क्वाइट वाइड, राइट, बिकॉज सो दैट आपके जो शोल्डर्स होते हैं उस पर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट ना हो. सो फॉर अ सॉलिड ब्लॉक रेस्टिंग ऑन द फ्लोर द प्रेशर एक्टिंग ऑन द फ्लोर इज हाईएस्ट व्हेन द ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन इट्स स्मॉलर सरफेस. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे आपका यहाँ पे सरफेस जो कॉन्टैक्ट में है सरफेस के वो यहाँ पे कम है, सो स्मॉलेस्ट एरिया दैट मीन्स यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा होगा. एंड हियर एज द एरिया इज बिग सो द प्रेशर इज स्मॉल. नाउ स्टूडेंट्स, प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप वाटर को फिल करते हो एंड ऑयल को फिल करते हो और आप उस कंटेनर में होल करते हो, सो क्या होगा, वाटर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेल आउट होगा. द मोर डेंस लिक्विड द हायर द प्रेशर एट एनी पर्टिकुलर डेप्थ. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज वॉट यू कैन जस्ट सी हियर. सो इसका क्या होता है, डेप्थ पे प्रेशर जो होता है वो हायर हो जाता है. नाउ लिक्विड प्रेशर. स्टूडेंट्स, लिक्विड exerts pressure on the walls of the container in which it is kept. The pressure exerted by a stationary liquid kept in a container at a particular point inside the beaker in which whatever किसी भी कंटेनर में वो है तो उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है. ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं कुछ एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं. लाइक हमने यहाँ पे अगर यहाँ पे हम रबर बैलून लगा दिया एंड हम वाटर को फिल करते जाएंगे तो ये क्या होगा, ये इनफ्लैटन होना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा. सो लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर. ओके, नाउ यू कैन जस्ट सी हियर. सो लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड the liquid depends upon the density and the height of the liquid column upon the point. Now students, liquid exert pressure sideways also. अभी हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम इस कंटेनर में जिसमें कि वाटर है अगर हम इसमें प्रिक्स कर देंगे, इसको हम प्रिक कर देंगे, सो आप देखोगे कि हर साइड से वाटर क्या होगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी that the pressure increase with depth. The depth into a liquid you go, the greater the weight of the liquid above the higher pressure. ठीक है, अभी हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझेंगे. सो नाउ स्टूडेंट्स, प्रेशर डजंट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर. ये शेप पे डिपेंड नहीं करता बिकॉज इट एक्सर्ट्स प्रेशर साइडवेज ऑल्सो.
Okay, now what is atmospheric pressure, students? Before I tell you atmospheric pressure, you should be knowing that what is atmosphere. Atmosphere क्या होता है? Students, हमारी अर्थ के सराउंडेड एक ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर का. इट इज़ अ मिक्सचर लेयर्स ऑफ गैसेस. सो वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पे. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ एयर अराउंड अस. ओके, एंड ये प्रेशर जो होता है ना, ये हमारा ऑल वे थ्रू होता है. लाइक जैसे हमारा ग्रेविटेशनल पुल होता है, सो ये एयर का प्रेशर भी जो होता है ना, ये हमारा हर डायरेक्शन में लगता है. वो हमें लाइक डाउनवर्ड पुल करता है, ग्रेविटेशनल पुल. यहाँ पे जो एयर का प्रेशर होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट इन लाइक ऑल डायरेक्शन. यू कैन जस्ट सी हियर दैट द वेट ऑफ एन एयर कॉलम, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है ना बेटा, उसकी जो विड्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. इट इज़ लाइक इन किलोमीटर्स. नाउ द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर enveloping the earth. It exerts a pressure of 1000 kilometers above the surface. The total mass is this huge. अब देखिए कितना huge है ये, right? जो now the pressure inside our body is almost the same as the external pressure and so it balances it. तो ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई इतना ज़्यादा प्रेशर अगर हम पे एयर एक्सर्ट करेगी तो हम कोलैप्स क्यों नहीं हो जा रहे? बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिससे कि वो प्रेशर क्या होता है, वो फोर्स बैलेंस हो जाता है. राइट नाउ स्टूडेंट्स, हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है, एट द हाइट स्टूडेंट्स हाइट पे आपका जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है. राइट, सो atmospheric pressure decreases with the altitude. We already know that atmospheric pressure at places is the force exerted by the weight of air column above that place. ठीक है, उस पे जो air column present है वो उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. राइट, सो स्टूडेंट्स द हाइट एंड वेट ऑफ द एयर कॉलम डिक्रीजेज एज वी गो अप. सो जब हम एल्टीट्यूड हाई हाइट्स पे जाते हैं, वो एल्टीट्यूड क्या होता है, वेट उसका डिक्रीज होने लगता है. देयरफॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो रिड्यूसेस एज वी गो हायर प्लेसेस. हैंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स एल्टीट्यूड. नाउ चिल्ड्रन, वन लाइक apparatus is there, बैरोमीटर, जिससे एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. सो आप देख सकते हो, व्हेन अ पिस्टन इज पुल्ड अप द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर विल डिक्रीज. जो इसका प्रेशर अंदर होगा वो कम हो जाएगा, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर अप्लाई हो रहा है वो क्या करेगा, इस लिक्विड को इसके अंदर push कर देगा. Now children, you can just see here, when a person sucks through the straw, the pressure in the straw becomes low and the atmospheric pressure outside is higher, and it will result in कि आपका जो water होगा वो इस straw से pass on हो सकेगा. So vacuum cleaner also works on the same principle. When vacuum cleaner is switched on, it sucks out the air inside the cleaner. ये सारा suck कर लेता है, causes the pressure inside the cleaner become low, and the magnitude of the force, the air and the dust particles into the atmospheric pressure which is higher in will clean the. So the vacuum cleaner also works on the same principle. So children, like suction cup का भी हम यहाँ पे example ले सकते हैं. आपने देखा होगा suction cup जो होता है, it also works on the same principle. is a device, ये एक device होता है that sticks. आपने देखा होगा students, जो आपकी like tables होती हैं जो कि ग्लास की होती हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो. सो द सक्शन कप इज अ डिवाइस दैट स्टिक्स टू द स्मूथ सर्फेस, नॉन पोरस सर्फेस. आप देखते होगे ग्लास के ऊपर कैसे वो स्टक रहते हैं. इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ रबर, प्लास्टिक के बने होते हैं. अपॉन प्रेसिंग द सक्शन कप क्या होता है, उस पर इंटैक्ट हो जाता है सर्फेस पे. द एयर प्रेशर इनसाइड द is greatly reduced, thereby creating a pressure. So students, outside a pressure outside that prevents the cup from lifting off the surface and holds it on in its place. Okay students, now here I will give you one more example कि अगर आप ग्लास में वाटर लेते हो, अगर उसके ऊपर आप एक कवर को कवर कर देते हो कार्डबोर्ड से उसको, सो क्या करोगे, जब आप उसको क्या करोगे, इन्वर्ट करोगे, सो आप देखोगे कि वो जो कार्डबोर्ड होगा वो अपनी प्लेस से हटेगा नहीं. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस atmospheric pressure. So students, here I hope things are clear to everyone.
सो व्हेन आई एम जस्ट कंक्लूडिंग दिस, जब मैं इसको कंक्लूड कर रही हूँ, सो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर एट द पॉइंट जहाँ पे कि हमें प्रेशर एंड फोर्स अच्छे से समझ में आ गया है. ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था जैसे कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स भी होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, एग्जोस्फेयर. सो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, वेट ऑफ एयर बिकम्स लाइक इट विल जस्ट डिक्रीज, एंड इसीलिए आपका ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, एंड आपका जो जैसे जैसे लेयर से आप ऊपर जाने लगते हैं प्रेशर रिड्यूस होने लगता है. ओके एंड चिल्ड्रन, यहाँ पे हम आपको बता दें कि आप एक बहुत ही लाइक आपने अभी जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था, ग्लास को जब आप इन्वर्ट करेंगे, सो अब क्या होगा कि ये इन्वर्ट इसलिए क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल पुल है वो भी उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, एंड आपका साइडवेज प्रेशर भी लग रहा है. सो स्टूडेंट्स, होप प्रेशर एंड फोर्स इज क्लियर टू एवरीवन. सो हियर आई वुड लाइक टू टेल you that please do just go through the video in detail. So in this video we have studied about force, direction of force, contact forces, muscular force, friction, mechanical force, non-contact force, magnetic force, electrostatic force, gravity. So I have already told you the force with which the earth attracts objects toward itself. This is gravity. Okay, what is gravitational force? The force with which any two masses or objects pull each other. Okay, जो हमें अपनी तरफ अर्थ खींचती है वो ग्रेविटी है, और जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक दूसरे को पुल करने की टेंडेंसी होती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. प्रेशर ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, एंड atmospheric pressure also we have learned in this module. So students, hope you have understood this chapter well. Thank you students, thank you for listening.